you have to keep two things in mind, whether it is saving the time and whether it is placed properly, the spacing is used in a most optimized and efficient manner. ये दो प्रिंसिपल्स आपको थ्रू आउट द वीडियो याद रखना है, ओके। एंड ये सारे मैंने टॉपर कॉपीज ही इंक्लूड किए हैं सो दैट यू गेट द रेलेवेंस कि हाँ टॉपर्स लिखते हैं एंड इट इज feasible to write in the answer, because so many toppers are there and almost every topper is writing and making such flowcharts and diagrams को आप spices की तरह यूज करिए which enhances your answer, which enhances your taste instead of just spoiling it by overdoing it. तो draw नहीं कब करना चाहिए, इसको address करना बहुत जरूरी है. Now let me just give you quick demo because it will make you understand things better. This is GS1 2025 पेपर. I have got 14 questions. यहाँ पे मैं क्विकली बताऊंगी कि कहाँ पे हम डायग्राम्स बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं. जहां नहीं बना सकते वहां बेवजह नहीं बनाना है. UPSC Civil Services is a three-stage examination: prelims, mains and interview. And mains decide करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, आपकी रैंक या केडर क्या होगी. And every single marks in mains matters. इसीलिए if you can master the skill of drawing diagrams, you will get half or 1 mark extra in every answer. However, drawing diagrams in your answer copy is an art, and a good artist is always remembered. So if you can draw relevant diagrams in your answers, you will be remembered as a selected candidate. Hi everyone, my name is Neetu Tiwari. I am faculty and mentor at UPSC Prep. I have written multiple UPSC Civil Services mains, State Services mains, and I have guided many students in this journey. So today we are going to discuss about art of making diagrams in UPSC. So मैंने बात करी कि मेंस के आंसर्स में डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउएवर, ड्राइंग डायग्राम इज नॉट लिमिटेड टू मेंस आंसर ओनली. सो लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू और अ मैक्रो एनालिसिस कि आपको डायग्राम्स बनाने का बेनिफिट क्या है. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इज वैल्यू एडिशन इन मेंस आंसर. तो अगर आप डायग्राम के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इट कैन add value to your mains answer. So first thing is value addition in your mains answer. However, I want to ensure कि आपको पता रहे it is not limited to mains answer only. It also helps you in conceptual understanding and in making notes. And जब आप conceptually चीजों को understand करते हैं, अच्छे से notes बनाते हैं in a flowchart manner, tabular manner, जो कि diagram है. Diagram का definition है simplistic representation in a schematic manner of complex कॉन्सेप्ट्स. तो जो भी चीज थोड़ी मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपलर वे में आप डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. एंड अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया है प्रॉपरली एंड सिंपल डायग्राम्स बना पा रहे हो, दैट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है एंड इट हेल्प्स यू इन प्रीलिम्स एज वेल. हाउएवर, द मैक्सिमम पार्ट इज यूटिलाइज इन द मेंस आंसर्स. एंड अपने वीडियो का मेजर फोकस जो है आज वो मेंस के ऊपर रहने वाला है. सो जैसे कि प्रीलिम्स के लिए आपको मैं बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, लक्ष्मीकांत में 10-12 चैप्टर्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सो यू कैन मेक अ सिंपल टेबल जहां पे आपने यहाँ पे बॉडी लिख दी, उसके फंक्शंस, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रिमूवल क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यू कैन राइट मे बी 50-60 पेजेस इन जस्ट वन टेबल. सो दिस इज वॉट इज द पावर ऑफ ड्रॉइंग डायग्राम्स. सिमिलरली ऐसे मेंस के भी जब आप क्विक रिविजन नोट्स बनाते हैं तो आपको सेंटेंसेस और कंप्लीट पैराग्राफ्स लिखने से बेटर है that you write a keyword. Maybe this is a globalization का notes है, so then you can just write a keywords whatever you know, and then in a hub and spoke manner there is a notes. So these are the notes that you can make in a schematic and diagrammatic manner, and mains answer में आपको diagrams add करने ही हैं. So let us start. Let's focus on the mains answer writing में हम diagrams को कैसे use कर सकते हैं. Before beginning with the detailed idea, I want you to remember two very important principles. First principle is that diagrams should save your time. If it doesn't save time, that means आप कुछ गलत कर रहे हैं. जब भी आपको एक पेज मिला है एंड उस पेज में आपको सपोज आप ये 5 लाइंस लिखने वाले हैं, ये 5 लाइंस की जगह पे आपने सपोज एक ये डायग्राम को ड्रॉ किया है एंड इस डायग्राम को ड्रॉ करने में कम टाइम लगना चाहिए देन राइटिंग दीज लाइंस, और एट मैक्स लेस और इक्वल टाइम.
ठीक है, लेस और इक्वल टाइम, नॉट मोर टाइम. इफ यू आर टेकिंग मोर टाइम देन राइटिंग योर कंटेंट, देन आई थिंक डायग्राम्स शुड बी अवॉइडेड. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम आपका टाइम सेव करना चाहिए. एंड सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज नो मिस स्पेसिंग. Avoid the misspacing of the diagrams. What I mean by misspacing are two important things. फर्स्ट तो ऐसा है कि सपोज आप अगर मेंस में आपको 2 और एट मैक्स 3 पेजेस मिलते हैं फॉर 15 मार्कर्स एंड 2 पेजेस फॉर 10 मार्कर्स, तो आपके पास सिर्फ 2 या 3 पेजेस है. एंड इफ यू आर ड्रॉइंग अ डायग्राम, सपोज यू आर ड्रॉइंग अ वर्ल्ड मैप और समथिंग एंड इट इज टेकिंग almost an entire page, here you are drawing world map suppose, and it took almost entire page, तो आपने पूरा स्पेस जो है उसको वेस्ट कर दिया और आपने एक्स्ट्रा स्पेस को यूटिलाइज कर लिया है. बिकॉज डायग्राम का भी एक पर्पस होता है, इट कैन गिव यू दैट हाफ 1 मार्क एक्स्ट्रा, बट आपका जो कोर कंटेंट है वो आपको लिखना पड़ेगा. तो आप अपने कोर कंटेंट का स्पेस जो है वो इस आंसर में डायग्राम्स को प्योरली नहीं दे सकते. And another very crucial point is if question has suppose 3 parts, there is one part of the question, second part of the question, and the third part of the question. Suppose some concept like define maybe ocean currents, and then what are the advantages of it or what are the challenges it is facing. For example, something is there. So writing about the advantages where you're talking about the cold and hot current meeting and it is a good fishing ground and all, it should be written under this subsection. So you cannot draw this diagram under here or here. So you have to place your diagrams at an accurate place. Instead of just putting it anywhere in the page or your any page, put it in a appropriate subsection. Also make sure it is not taking too much space. Okay, so now whatever we will discuss, you have to keep two things in mind: whether it is saving the time and whether it is placed properly, the spacing is used in a most optimized and efficient manner. ये दो principles आपको थ्रू आउट द वीडियो याद रखना है. ओके, नाउ वी विल बिगिन. सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी करने से पहले इन लाइफ और इन द प्रिपरेशन इन जनरल, हमेशा खुद से पूछो व्हाई यू आर डूइंग इट. Is it going to help you? How it is going to help you and all. So ask why always. So सबसे पहला रीजन है कि आपको डायग्राम्स क्यों बनाने चाहिए, इज बेटर conceptual explanation. मतलब देर इज अ लॉट ऑफ टेक्स्ट that is present, but you will not be able to explain it if you don't use diagram. So I have got a lot of examples and don't worry, if you watch this video till end, आप बहुत कुछ सीख के जाओगे. आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी. आई एम गोइंग टू गिव यू रिसोर्सेज, आई एम गोइंग टू गिव यू प्रैक्टिकल आइडियाज हाउ यू कैन कंपाइल डायग्राम्स, हाउ यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज इट, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर. सो अगर आप 2026 का मेंस दे रहे हैं या आप 2027 के मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल वीडियोस फॉर यू. इसको आप पूरा देखिए एंड सीखिए, इसका बेनिफिट लीजिए. सो जैसे ये कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है, स्पेशली ज्योग्राफी में अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट है, साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, और मे बी प्लेट टेक्टोनिक्स है, तो जैसे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो भी होती हैं, उसके बारे में अनलेस आपने ये प्लेट्स बना के ऐसे शो नहीं किया है, तब तक आप उसको एकदम एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे. एंड ये देखते ही एग्जामिनर को समझ आ गया, आई डोंट नीड टू रीड दिस, आई नो दैट दिस पर्सन नोज व्हाट इज अ डाइवर्जेंट बाउंड्री. ऑल्सो इट शोज अ सेकेंड लेवल थिंकिंग ऑर्डर, जहां पे एक डेप्थ शो होती है कि वर्ल्ड मैप पे इन्होंने बता दिया है कि कहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं. सो it explains the concept very well and examiner will get satisfied, okay, this person knows the concept and he is able to explain it to me. And this is a toppers answer copy, इशित्वा आनंद, जो कि इसी साल के AIR 50 हैं. सो आई हैव इंक्लूडेड टॉपर्स कॉपी, ये पब्लिक डोमेन में फ्रीली अवेलेबल है, आप रेफर करिए टॉपर्स की कॉपी, उनके डायग्राम से आप सीखिए. सो ये इशित्वा आनंद की कॉपी है जिसमें उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली डायग्राम के थ्रू डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया. सो दिस इज द फर्स्ट रीजन. सेकेंड क्या है, डायग्राम्स जो होते हैं वो बेटर रिप्रेजेंटेशन है. मतलब फॉर एग्जाम्पल हियर सम डेटा इज देयर and it is Ekansh Dhul, All India rank 3 this year. He is a person who got a very high marks in GS. So GS in total में इनके नंबर बहुत अच्छे रहे हैं और इन्होंने डायग्राम्स, हब एंड स्पोक काफी यूज किया है. सो सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डायग्राम, इसको अगर आप टेक्सचुअली लिखेंगे तो ऐसा कुछ रहेगा कि फ्रॉम 23% टू 20% का डिक्लाइन हुआ है
from the data of NFHS 4 to NFHS 5, and then you will in women, and then you will write for men. So it is first of all going to take इतना space, and उसमें फिर एग्जामिनर को ये दोनों डेटा, फिर उसमें ये कौन सी रिपोर्ट थी NFHS 4 का क्या है. So it is very difficult to comprehend this data, and examiner may miss this important information that you're providing. So what you can do, you can represent it in a diagrammatic manner very beautifully, that okay, this was the situation in the National Family Health Survey 4, and now this is a situation in a National Family Health Survey 5. Okay, so this is a small, very small diagram, takes a very little space and can be quickly drawn maybe in just 5 seconds, with the labeling as well. So you can utilize this diagram also, because it sticks to our two principles. And let me tell you, because we are giving a government examination, we should see how government is also presenting its data, how government comes up with the information and data. And in fact, governmental websites like PIB comes up with a flow chart, pie chart, diagrams, etc., to show the data and to give a better visual representation. So we can learn from PIB and other governmental sources on how to draw diagrams. So look at this. दिस इज अ पीआईबी आर्टिकल जहां पे इंडिया के सोलार कैपेसिटी की ग्रोथ के बारे में बताया गया. सो दिस इज अ 2004 एंड दिस इज 2025 ईयर. एंड यहाँ पे देखिए 39 से 116 गीगावाट हो गया. सो वेन एवर नाउ सी, दिस इज फ्रॉम पीआईबी, दिस इज अ ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा. इट इज अबाउट द सोलर कैपेसिटी. यू कैन मेक नोट ऑफ दिस डेटा. इस तरह से मैंने आपके लिए ये आर्टिकल लेके आई हूँ. लेट मी जस्ट क्विकली शो यू. सो दिस इज पीआईबी, जहां पे पावरिंग आत्मनिर्भर भारत. गो एंड रीड, लाइक जस्ट स्क्रोल थ्रू दिस आर्टिकल, यू विल गेट टू सी कि कितने ब्यूटिफुली इस आर्टिकल में कितने सारे डेटा को दिया है. फॉर एग्जाम्पल हियर, नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल कैपेसिटी इन इंडिया, इसमें सोलर पावर मैक्सिमम करता है. सो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम. ऐसे इसको ड्रॉ करना क्या बहुत मुश्किल बात है. यू कैन ड्रॉ इट, राइट. इट्स अ वेरी सिंपल पाई चार्ट. एंड इफ यू स्क्रोल एंड रीड दिस डॉक्यूमेंट, सी दिस इज वॉट आई वॉज शोइंग. सोलार कैपेसिटी को इस तरह उन्होंने रिप्रेजेंट किया है. देन देर विल बी अदर हाइड्रो पावर में भी, वॉट एवर द प्रोग्रेस एंड ग्रोथ इज गोइंग, न्यूक्लियर पावर, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग नाउ वेन यू आर लुकिंग एट द डेटा. सो गवर्नमेंट खुद भी पीआईबी के, अगर आपने और आर्टिकल्स ढंग से पढ़े हैं, वेयर दे आर कमिंग विद द डेटा. इनफैक्ट इफ यू are with me, you go and read about Atmanirbhar in defense, and there you will find wonderful charts and pie diagrams, etc., for data for the defense, how much India is manufacturing, etc. And if you are going to do this exercise, come back and write in the comment that yes, you have done this exercise and you have looked at this kind of data from a government site, and now you get a perspective on how to use it for a better representation. Okay, so even when government is using this kind of representation, why should we avoid it? We should definitely learn and include it in our answers. Now then, you can add more dimensions. You can make it multi-dimensional, because we have a limited page and time. For example, this is Xenia Arora, who is All India rank 6 this year. So इनके आंसर में ये देखो, बस इतना स्पेस बचा हुआ है एंड में. बट व्हाट शी डिड, उन्होंने एक ऐसे हब स्पोक छोटी सी जगह में ही 3 और पॉइंट्स ऐड कर दिए. नाउ एग्जामिनर नोज की शी हैज रिटन 5 challenges, सॉरी हियर 3 challenges, एंड इसके पहले उन्होंने एक पेज पे और 5-6 पॉइंट लिखे, एंड नाउ दिस इज 3 points. So instead of ending here, she has written 3 more points. So 3 + 3 + more, suppose 4, 3, 4, 5 points she has written. तो इतने सारे पॉइंट्स उनके हो गए, एंड वे फॉरवर्ड का एक एडिशनल डायमेंशन हो गया. एंड में उन्होंने इतने में कंक्लूजन लिख दिया. इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग कंक्लूजन हियर, she used this space wisely, using a small, very simple diagram, flow, like a hub spoke diagram, and added a new dimension. Okay. Now, one of the reasons, because time is a very crucial thing in mains, so many times आपका पेपर छूट रहा है तो आपको क्विकली स्पेस फिल करना है. कई बार पता भी नहीं होता, बहुत ज्यादा डेटा, अननोन क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो ऐसे 2 पेजेस हैं ना, आपके पास 2-3 मिनट ही है, या लास्ट में यूर रशिंग थ्रू फ्यू आंसर्स. एंड मोस्ट ऑफ द टॉपर्स स्ट्रगल विद, एवरीबडी स्ट्रगल्स विद कंप्लीटिंग द पेपर इन मेन्स. सो देयर using the diagram helps in filling the space. For example, if you see Surbhi Yadav, who is All India rank 14. In fact, in one of the answer copies, she was unable to, there was a question on BIMSTEC something, and she was unable to write because इसके आगे का उनका पेज empty रह गया. But what she did, maybe last half a minute, 1 minute में उन्होंने कुछ तो लिखा and quickly at least एक diagram बना दिया कि examiner 0.5 और 1 mark दे पाएगा. Maybe वो text लिख नहीं पाते इतने टाइम में.
क्योंकि वो टेक्स्ट लिखने में कि दीज आर द कंट्रीज इन बिम्स्टेक एंड ऑल, शी क्विकली ड्रू अ डायग्राम इन द लास्ट 1 मिनट। तो ये जैसे कि यहाँ पे भी आप देखिए तो थोड़े स्पेसेस मिल जाते हैं, अभी यहाँ पे आपको टेक्स्ट नहीं लिखना पड़ा, यहाँ पे नहीं लिखना पड़ा, सो इट सेव्स सम स्पेसेस, इट हेल्प्स इन फिलिंग द पेज। इट इज वन ऑफ द रीजंस, ये मतलब एक एडिशनल रीजन है, बट दिस इज नॉट द प्राइमरी रीजन फॉर ड्रॉइंग द डायग्राम्स। प्राइमरी रीजन इज वैल्यू एडिशन एंड गेटिंग दैट लाइक मसाला इन द आंसर, जिससे आपके आंसर को एक फ्लेवर मिले, एक बेटर रिप्रेजेंटेशन मिले, और वो एग्जामिनर मजबूर हो जाए कि हाफ 1 मार्क दे दे उसको। वो आह मोमेंट देने का जो है कि आप वाव आए कि एग्जामिनर के मुंह से कि कितना अच्छा लिखा है। सो दीज आर द फ्यू रीजंस, आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू आर टेकिंग नोट्स ऑफ इट। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायग्राम। इच कैन बी हब एंड स्पोक, मतलब एक यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है उसको आप एक्सप्लेन कर दो, इट इज वेरी कॉमनली यूज, एंड इट कैन बी इन अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑल्सो, मतलब ऐसे ऐसे करके भी एक्सप्लेन कर दिया, कुछ स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर के आगे भी हब एंड स्पोक मॉडल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने किया है, सर्किल बनाया एंड वन डायरेक्शन में ही बना दिया। सो दिस वे, और यू आर राइटिंग समथिंग हियर मे बी वे फॉरवर्ड, एंड देन यहाँ पे यू जस्ट ड्रॉ समथिंग जैसे यहाँ पे किया हुआ है। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ हब एंड स्पोक। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एकांश धुल हैं जिन्होंने चैलेंजेस देखो ऐसे बनाया, और यहाँ पे उन्होंने 4 पॉइंट्स हब एंड स्पोक में 5 पॉइंट्स ऐसे लिख दिए उन्होंने एंड एंड में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आंसर एक एडिशनल डायमेंशन भी आ गया और थोड़ा बहुत स्पेस भी बच गया, क्विकली इन्होंने कंप्लीट कर दिया। सिमिलरली राघव झुंझुनवाला जो कि AIR 4 है, उन्होंने भी एक ऐसे स्क्वायर बनाया और उसके आगे ऐसे 6-7 पॉइंट्स ही हैज रिटन इन अ हब स्पोक, सो इट इज बेटर रिप्रेजेंटेशन एंड क्विकली हो जाता है। देन यू कैन यूज ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ट्रायंगल, स्क्वायर, ऑक्टागन, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे है गुड गवर्नेंस का, वर्ल्ड बैंक का आई थिंक जो इन्फॉर्मेशन है, वहां पे 8 aspects लिखे हुए हैं, वॉट एवर इट इज, इंक्लूसिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, ऑल दोज थिंग्स। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ड्रॉ सच डायग्राम्स एंड यू कैन राइट ऑल दोज फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। यहाँ पे जैसे कि आई थिंक दिस इज अ कॉपी बाय श्रुति शर्मा, हु वाज रैंक 1 एंड हु हैज रिटन वंडरफुल आंसर्स। उन्होंने देखो ऐसे ये ट्रायंगल यूज किया कि पब्लिक सर्विस में क्या होता है, गवर्नमेंट है, मार्केट्स हैं, सिविल सोसाइटी है, सो ऐसे ट्रायंगल्स यूज कर सकते हो। एंड प्लैनेट, पीपल, प्रॉफिट, सच काइंड ऑफ थिंग्स अगर आपने पढ़ा है, प्लैनेट, प्रॉफिट एंड पीपल, इट इज फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस, ऐसे आपको ये तीनों एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना होता है। सो दिस वे यू कैन यूज ट्रायंगल्स एंड ऑल। नाउ वेन डायग्राम्स, वेन सम थिंग्स आर ओवरलैपिंग यू कैन ड्रॉ सच वेन डायग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ तो जुडिशरी के बारे में इन्होंने लिखा है कि वेन दीज टू, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का एम्बिट क्या है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का एम्बिट क्या है, एंड यहाँ पे कन्वर्जेंस। सो वेन एवर सेपरेशन ऑफ पावर, ओवरलैपिंग ऑफ पावर आ रहा है, या इकोनॉमी वर्सेस एनवायरमेंट, इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी का कोई डायलेमा आ रहा है, कोई तकलीफ आ रही है कि एनवायरमेंट को सस्टेन करने के लिए इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे कोई मिड पार्ट होगा और देयर विल बी सम ओवरलैप दैट यू कैन प्रेजेंट थ्रू वेन डायग्राम। देन देयर कैन बी फ्लो चार्ट्स, एनी टाइप ऑफ फ्लो चार्ट जहां पे आप किसी भी कॉन्सेप्ट को एक डायरेक्शन में, या साइक्लिक प्रोसेस हो गया जैसे विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी हो जाती है, तो उसको ऐसे साइक्लिक फॉर्म में यहाँ पे यू कैन राइट समथिंग, हियर यू राइट समथिंग एंड देन यू कैन राइट हियर, एंड देन यू कैन मेक अ विशियस साइकिल, right? So this here you can write vicious cycle of poverty, like maybe poverty, then low education, low education, poverty leads to low education, low education leads to low employment, and many other things. You can just create such kind of cycle for anything, can be vicious cycle, victorious cycle and all. So you can create and you can quickly, a big detailed thing you can explain in a flowchart manner. फॉर एग्जाम्पल हियर यू सी APMC के लिए फार्मर्स, MSP, APMC एंड फिर मार्केट्स, वो कैसे एक फ्लो चार्ट है, कैसे फ्लो होता है, APMC का वर्किंग मैकेनिज्म, दैट इज एक्सप्लेन्ड। एंड ये सारे मैंने टॉपर कॉपीज ही इंक्लूड किए हैं सो दैट यू गेट द रेलेवेंस कि हाँ टॉपर्स लिखते हैं एंड इट इज feasible to write in the answer because so many toppers are there and almost every topper is writing and making such flowcharts and diagrams. For example यहाँ पे है governance के ऊपर कि lesser devolution, it is like about the devolution of power. When lesser devolution is there, then less governance plus financial issues will be there and 3F issues will come as told by नीति आयोग। तो इतने से में ही दिखा गया। एंड 3F में फंड, फंक्शनरीज, वो वाला जो भी है, अगर आपको पता है डेवोल्यूशन ऑफ पावर में, दैट इज द 3F इश्यूज। यहाँ पे भी बहुत सारे मैंने देखे हैं कि 3F ऐसे लिख दिए और यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया तीनों,
फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, यहाँ पे आपने लिख के खत्म कर दिया. सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन इन अ डायग्रामेटिक मैनर. इससे क्या एनहांस हो जाता है आपका रिप्रेजेंटेशन एंड इट इज वेरी इजी फॉर द एग्जामिनर टू रीड. ओके, सो फ्लो चार्ट्स आर ऑल्सो टाइप ऑफ डायग्राम. देन टेबल. सो एज वी सॉ दैट प्रीलिम्स के लिए हमने पूरे बहुत सारे चैप्टर्स का टेबल बनाया था. सो दिस इज आई थिंक बाय रूपल जायसवाल मैम, हु इज गोइंग टू टेक सेशंस विथ यू. रूपल जायसवाल मैम है जो कि AIR 43 है, एंड इन्होंने 2 बार यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर किया है. शी हैज गॉट रैंक ट्वाइस एंड शी इज टेकिंग अ कोर्स विद अस वेयर शी इज टीचिंग ऑल दीज थिंग्स जो मैं आपको आज बता रही हूँ, इसको मोर प्रैक्टिकली इन डेप्थ इन द लाइव लेक्चर शी इज गोइंग टू कवर. तो रूपल जायसवाल मैम का जैसे आपको टेबल बनाना है, जनरली कहाँ पे सुटेबल है, जब आपको कंपेयर करना हो. जैसे यहाँ पे एम्पथी एंड कंपैशन को कंपेयर करना, सो यहाँ पे आपने एक पॉइंट्स दे दिए, कॉम्पोनेंट्स, बेसिस ऑफ इट, एंड देन यू आर कंपेयरिंग बेस्ड ऑन दिस थिंग बोथ द एस्पेक्ट्स. तो जब भी ऐसा कुछ कंपेयर का आए या कुछ आए तो आप टेबल बना सकते हो. टेबल्स आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ डायग्राम्स. नाउ देर आर सम बेसिक लाइन डायग्राम्स ऑल्सो, कि यहाँ पे जैसे कि हब स्पोक है, वो ऐसे स्क्वायर फॉर्मेट में बना के जस्ट पॉइंट्स को, इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग 1 2 3, ऐसे करके यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ EI को ऐसे एक्सपांड कर दिया. आई थिंक दिस इज ऑल्सो बाय रूपल मैम. एंड देन जैसे ये देखिए, HDI focuses on 3 aspects: health, education, standard of living. Quickly हो गया. Instead of writing it in a sentence format, it is written in a very simplistic line diagram बना दिया. सेम यहाँ पे भी consequences, समथिंग इज आज, उसका consequences, challenges. इफ यू रिमेंबर एकांश धुल का ऐसे ही तरह से उन्होंने challenges लिखा, एंड challenges के यहाँ पे ऐसे हब स्पोक बना दिया एंड एंडेड. सो जस्ट सिंपल मेकिंग एनी लाइन डायग्राम और एनीथिंग विथ हेल्प. These are the small addition that you can do. Now there are some nice sketches or drawings that you can do. For example, drawing sketches. This is I think by Ishitwa, who is AIR 50. उन्होंने जैसे ये एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन था, तो उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री बता दिया उन्होंने कि ट्रीज हैं, यहाँ पे ट्रीज लग रहे हैं और यहाँ पे क्रॉप्स भी हैं, तो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री दोनों हो रही है. सो दिस एग्जाम, दिस पर्टिकुलर थिंग रिप्रेजेंट्स प्रॉपरली व्हाट इज आस्क्ड. So if the core question is about agroforestry, this is a relevant diagram there. Otherwise ये उतना relevant नहीं होता, पर agroforestry पे है, so it is a relevant diagram and it takes a very small space. मतलब एक पूरा इतना बड़ा पेज है, इसमें इतना छोटा सा स्पेस लिया इसने सिर्फ. नाउ यू कैन राइट अ लॉट. यहाँ पे आपने क्लियरली समझा दिया दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्रोफॉरेस्ट्री इज. फॉर एग्जाम्पल हीट डोम पे क्वेश्चन आया था, अर्बन हीट आइलैंड्स, उस पे बना दिया कि अच्छा व्हाट इज अर्बन हीट आइलैंड. नाउ दिस इज रूपल जायसवाल मैम्स नोट्स, जहां पे जैसे उन्होंने कोई टेम्पल का आर्किटेक्चर, बहुत बार आता है आर्ट आर्किटेक्चर में, द्रविड़ा स्टाइल का टेम्पल हो गया, या फिर नगरा स्टाइल का है कि वेसारा स्टाइल है, एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड एवरी ईयर देर इज अ क्वेश्चन ऑन टेम्पल्स, आर्ट, आर्किटेक्चर. तो अगर आपने एक बार पूरी चीजें सीख ली, यू कैन ड्रॉ एन इन अ लाइक वेरी स्मॉल स्पेस, थोड़ी सी जगह लेगा, एंड यू कैन ड्रॉ सच डायग्राम्स एंड दे लुक वेरी ब्यूटिफुल ऑन द पेपर एज वेल. May take a little more time than 20-30 seconds, but if it is a very beautiful and relevant diagram, it will give you marks. Okay. So as I told that Rupal Jaiswal ma'am herself will take high value mains sessions. These sessions will be live, and let me tell you, these are for free. So even if you're somebody who is preparing for mains of some state services, maybe हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, किसी भी स्टेट सर्विस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका मेंस का फेज आने वाला है, आई विल हाईली रिकमेंड कि ये मैम जो हैं, इनके आपके ऑलमोस्ट 9 सेशंस हैं फ्रॉम 1 जुलाई टू 11 जुलाई. Everything from decoding the questions, understanding how to write your knowledge in a mains answer and how to get better marks, कैसे क्वेश्चन को डिकोड करना है, what is the answer writing architecture, everything is going to be covered in this particular session, and this is for free. So here what you can do, you can enroll in the mains Excel course, जहाँ पे रोहित सर एंड रूपल मैम दोनों आपको मेंस के लिए रेडी कर देंगे, एंड दे विल गिव यू ऑल द प्रैक्टिकल टिप्स, एंड इनफैक्ट यू कैन कम इन द लाइव सेशन एंड इंटरैक्ट विद द टॉपर्स डायरेक्टली. ये इजीली एक्सेसिबल एंड अवेलेबल है आपके लिए, सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि मेंस को कैसे करना है, कैसे डायग्राम्स बनाने, क्या करना है. एंड रोहित सिंह सर जो है वो PYQ आंसर राइटिंग आपको एवरी संडे 7 PM. सो अभी 4 सेशंस हो गए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, बट देर आर GS2, 3 essay, दीज थिंग्स आर पेंडिंग. तो अगर आपको लाइव आंसर राइटिंग सीखनी है, कंटेंट कैसे लिखना है, हाउ टू एड्रेस द डिमांड, you will 100% learn how to address the demand of the question if you sit in the Rohit Singh sir's lectures. Okay, so get enrolled into it, and if you have any queries, you can reach out to us about this course. Now
कमिंग बैक टू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायग्राम, वन इंपॉर्टेंट टाइप इज मैप्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डायग्राम नहीं आता तो भी चलेगा, बट मैप्स आर एसेंशियल डायग्राम्स। दैट मीन्स यू कैन कंसिडर देम एज स्टैटिक। जैसे आप स्टैटिक कंटेंट या पैराग्राफ्स पढ़ते हो, सिमिलरली आपको कुछ मैप्स हैं जो आपको याद करके ही रखने पड़ेंगे। जैसे ज्योग्राफी में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स का हो गया, साइक्लॉन्स कहाँ आते हैं, ओशन करंट्स कहाँ पे रहते हैं, ऑल दोस थिंग्स। आपको इंडिया का मैप एंड वर्ल्ड का मैप बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए, एंड यू शुड लर्न इट एंड यू शुड यूज इट इन योर पेपर। जैसे कि GS 1 के ज्योग्राफी में बहुत यूज होगा, GS 3 में भी यूज होगा नक्सलिज्म के ऊपर, डिजास्टर एनवायरमेंट में। एंड वर्ल्ड मैप कैन बी यूज्ड इन GS 2 ऑल्सो, वेयर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ बताना हो, जैसे INST बताना हो, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। ऑल दीज थिंग्स यू कैन शो इन अ मैप इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग द नेम ऑफ द पोर्ट्स की इस पोर्ट से इस पोर्ट तक जाता है, ये कंट्रीज इंक्लूडेड है, आप यहां से लेके बना के दिखाई दीजिए। दैट इज हाउ इट कैन बी यूज्ड। तो लर्न बहुत जरूरी है, आप मैपिंग सीखें। जैसे देखिए, सब लोगों ने बहुत परफेक्ट मैप्स नहीं बनाते, एटलीस्ट वर्केबल मॉडल बनाइए। देयर आर मेनी वीडियोज एंड ऑल अवेलेबल ऑन यूट्यूब। अगर आप 2026 का मेंस दे रहे हैं, टॉपर्स कॉपी में देखिए कैसे बना रहे, क्या बना रहे, क्विकली सीखिए। अदरवाइज गिव हाफ एन आवर, 1 आवर, प्रैक्टिस इट 10-20 टाइम्स एंड यू विल लर्न इट। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट मेक श्योर आप 10 सेकेंड्स के अंदर मैप बना पा रहे हैं, एंड देन यूर लेबलिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आकांक्ष धुल्स कॉपी। इन्होंने भी मतलब रफली कुछ मैप बनाया है। दिस इज विकास कुंदू, AIR 27 इनकी कॉपी है, इन्होंने भी देखिए काफी मैप्स बनाए हैं। दिस इज अ कॉपी बाय मेधा आनंद मैम, हु वाज AIR 13 इन 2023। एंड मेधा आनंद मैम की बुक जो कॉपीज हैं वो आप डेफिनेटली देखिए। शी हैज रिटन सो ब्यूटिफुल आंसर्स एंड शी हैज ड्रॉन सो मेनी डायग्राम्स। स्पेशली आप मेधा आनंद मैम की GS 2 की कॉपी को देखिए। एंड आई अंडरस्टैंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू थिंक कि कौन से टॉपर की कॉपी पढ़नी है, नहीं पढ़नी है। इफ यू वांट मी टू कम अप विद अ वीडियो वेयर आई विल कंपाइल एवरीथिंग कि किस GS पेपर के लिए कौन से टॉपर की कॉपी पढ़नी चाहिए, एंड ऑल, then let me know in comments. I will think on making this video to help you navigate कि कौन से टॉपर की कॉपी पढ़नी चाहिए फॉर विच सब्जेक्ट। एंड मैं आपको फिर एक लिस्ट प्रिपेयर करके एक वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ, एंड आई ऑल्सो गो थ्रू द टॉपर्स कॉपी, टेलिंग यू कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या देखनी चाहिए। इफ यू रियली नीड इट एंड इफ देर इज अ डिमांड, आई विल कंसिडर मेकिंग दिस वीडियो। तो मेधा आनंद मैम के GS 2 की कॉपी पढ़िए। शी आई थिंक गॉट 130+ मार्क्स इन GS 2, विच इज वेरी नाइस मार्क्स। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने भी इनकी आंसर कॉपी से मैंने लिया है, यहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया है, जहाँ पे स्प्रेड ऑफ डेजर्ट्स के बारे में उन्होंने बात करी है। तो यहाँ पे उन्होंने सारे डेजर्ट्स के बारे में लिख दिया है। एंड ऑल्सो इंडिया का मैप है, कोल्ड बियरिंग एरियाज का उन्होंने मेंशन किया है। दिस इज हाउ टॉपर्स हैव ऑल्सो इंक्लूडेड देयर मैप्स। तो वर्ल्ड मैप एंड इंडिया मैप की प्रैक्टिस करिए। नाउ आफ्टर नोइंग व्हाई टू ऐड डायग्राम्स एंड व्हाट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स आर देयर, इससे भी ज्यादा डायग्राम्स के टाइप हो सकते हैं, मैप्स, फ्लो चार्ट्स एंड ऑल। यू कैन इनोवेट, यू कैन बी क्रिएटिव, यू थिंक हाउ यू कैन डू इट डिफरेंटली, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ब्रेनस्टॉर्मिंग। नाउ सम रूल्स आर देयर टू ड्रॉ डायग्राम्स। सबसे इंपॉर्टेंट है रेलेवेंट डायग्राम्स। इफ इट इज आस्क्ड इन अ क्वेश्चन, if it is relevant in the question, then only draw. Don't draw it to fill the spaces or just to beautify it, क्योंकि relevant नहीं होगा तो एग्जामिनर उस पे मार्क्स नहीं देगा, एंड आपका भी स्पेस एंड टाइम दोनों वेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज अ क्वेश्चन जहां पे पूछा था कि हाउ MSME contributes to exports, exports, I think, employment generation and output, ऐसा something was there. See, ma'am has drawn, this is Medha Anand ma'am's copy, export, then industrial output, and then employment. These are the three components she has taken, and she has made it in a diagrammatic format. It is relevant because question has directly asked how MSME sector is helping in these three things. Okay. Now, second important rule that you should remember is making a neat and clean diagram. ऐसा नहीं बनाना है कि एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा है कंटेंट है, डायग्राम है, क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हियर मैम हैज मेड सो क्लियर एंड नीट डायग्राम, एंड उसको प्रॉपरली आपने लेबल भी कर दिया है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्या आप पेन यूज करें, पेंसिल यूज करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट यूज रेड पेन और ग्रीन पेन, क्योंकि ये एग्जामिनर्स एंड सुपरवाइजर्स वो यूज करते हैं, तो डोंट यूज इट। यू कैन यूज पेंसिल, बट यू हैव टू सी वेदर यू आर एबल टू ड्रॉ प्रॉपरली विद अ पेंसिल, क्योंकि इसमें अगर फेड हो जा रहा है या बहुत लाइट हो रहा है, देन इट इज रिस्की। ऑल्सो, डू यू गेट द बैंडविथ ऑफ चेंजिंग पेन एंड पेंसिल, क्योंकि मेंस में टाइम टाइम इज वेरी क्रूशियल, कंस्ट्रेंट होता है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द टॉपर्स जो हैं वो सिमिलर पेन से ही डायग्राम बना देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, द सेम पेन से ही लिखा भी है, सेम पेन से ही डायग्राम भी बना दिया। एंड दिस इज अ वंडरफुल डायग्राम ऑफ ऑक्सफैम रिपोर्ट,
कि इतना पॉपुलेशन है, लाइक 1% ऑफ द पॉपुलेशन controls 47% of the property. Such a wonderful diagram. If you're here, you should definitely make a note of it कि आप ये सारे डायग्राम्स खुद के नोट्स में ऐड करिए। एंड अगर कभी भी अगर आपने मेंस के पैटर्न को ढंग से एनालाइज किया, सो डेफिनेटली इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, इस पे क्वेश्चन आने ही आने वाला है इन GS1 GS2, यू विल फाइंड। सो यू विल बी एबल टू यूज दिस डायग्राम, जस्ट बी वेरी वाइज, इसको आपको ड्रॉ कर लेना चाहिए। सो यू कैन यूज पेंसिल or you can use the pen, same pen that you're using, or I have seen some topper who write with blue pen, and what they do, they draw with black pen, so it differentiates। तो ये कर सकते हो, but provided आप उतना fast लिखते हो and you have the bandwidth to accommodate this। otherwise just make sure never use red or green pen, it is not allowed। just use blue black pen, ब्लू पेन और अ ब्लैक पेन और अ पेंसिल। डायग्राम पेंसिल से कर सकते हो, कंटेंट पेंसिल से आप नहीं लिख सकते हो, अदरवाइज मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर मेंशन्ड बाय यूपीएससी, तो आपको ये चीज फॉलो करनी है। नाउ जनरली यू शुड ट्राई टू पुट द डायग्राम्स इन बॉक्स, तो क्या वो सेपरेट आउट कर देता है उसको, इट मेक्स इट लुक क्लीन ऑल्सो। सो इट इज अ रूल, यू फॉलो दिस। लेबल द डायग्राम, इफ यू आर ड्रॉइंग अ डायग्राम इट शुड बी रेलेवेंट, यू हैव टू लेबल इट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मेधा आनंद मैम की बुक है, आंसर कॉपी है ये, उन्होंने भी देखिए इसको अच्छे से लेबल भी किया है, बॉक्स में भी पुट किया, और नीचे लिखा है व्हाट फिगर दिस इज, स्प्रेड ऑफ डेजर्ट्स अक्रॉस वर्ल्ड। सो यहाँ पे जनरली आपको लिखना है व्हाट फिगर इट इज, इट हेल्प्स यू अलॉट। और आप मेधा आनंद मैम की बुक देखिए, इट विल डेफिनेटली गिव यू अ ग्रेट इंसाइट्स कि कैसे आपको फिगर को ऐसे लेबल भी करना है। सो आपको लेबल करना है एंड एक बॉक्स में डालना है। सो दीज आर 5 रूल्स दैट यू मस्ट रिमेंबर when you're drawing the diagrams, okay? Now, we have spoken a lot about drawing the diagrams, but it is very important to know when not to draw diagram, क्योंकि diagrams जो होते हैं वो spice की तरह है। It will give you a nice flavor, it will give nice flavor to the food, but अगर ये over हो जाता है तो फिर वो edible नहीं रहता। तो इसीलिए diagrams को आप spices की तरह use करिए, which enhances your answer, which enhances your taste, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्पॉइलिंग इट बाय ओवरडूइंग इट। तो ड्रॉ नहीं कब करना चाहिए, इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप बस देख लो क्या डायग्राम्स होता है हर आंसर में, इवन इफ इट इज रेलेवेंट नॉट रेलेवेंट योर ड्रॉइंग, डोंट ओवर डू इट। सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, कोर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसके बाद ही डायग्राम होता है। तो अगर आपका डायग्राम रिप्लेस कर रहा है कोर कंटेंट को, मतलब जो आर्ग्यूमेंट फॉर्मेट में आपको देना चाहिए था वो लिखने की जगह आप डायग्राम बना दे रहे हो, देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर पंचायत के ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट इज पंचायत डेवोल्यूशन का क्या इशू है क्या नहीं है, एंड यू आर ऐसे ड्रॉइंग अ नाइस पंचायत बिल्डिंग विच इज इररेलेवेंट टू द क्वेश्चन, चाहे कितना सुंदर आपने पंचायत बिल्डिंग उसमें सचिव एंड प्रधान जी बना दियो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, इट इज इररेलेवेंट डायग्राम एंड आपका कोई कंटेंट जो है उसको रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, सो रिपीट नहीं करना है। मतलब यहाँ पे आपने ऐसे बना दिया डायग्राम कि देर आर मैरिज, 3 टाइप्स ऑफ मैरिजेस, 4 टाइप ऑफ मैरिजेस, एंड कुछ लिखा, एंड देन सिमिलर थिंग यू आर राइटिंग इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट कि देयर आर 4 थिंग्स, तो फिर ये डायग्राम क्यों बनाया? रिपीटेशन अगर आप करोगे तो एग्जामिनर विल गेट बोर्ड, दैट पर्सन विल नॉट गिव यू मार्क्स, क्योंकि आपको खुद अच्छा नहीं लगता कि क्यों रिपीट कर रहे हो, पढ़ा दिया समझ में आ गई। इफ आई रिपीट कि मैं अभी 10 मिनट पहले जो बताया वापस से सेम चीज मैं रिपीट करूं, यू विल नॉट लाइक इट, यू विल बी लाइक हाँ आई अंडरस्टूड, मूव अहेड, गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन, गिव मी मोर वैल्यू इन द लेक्चर, आई एम सिटिंग हियर। तो इस तरह से अगर आप कोई चीज टेक्स्ट में लिख ही रहे हो तो उसको फिर डायग्राम मत बनाओ, इट इज जस्ट द रिपीटेशन। तो रिपीटेशन नहीं करना। इफ इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज इट वॉज आवर फर्स्ट प्रिंसिपल, that if it is not saving your time, if it is consuming more time than writing the content, then generally don't, unless it's a very beautiful diagram or sketch which is relevant and needed, then only you should write it और spend a little more time। otherwise नहीं करना है, just because डायग्राम बनाना ही है इसलिए बेवजह का टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओवर डूइंग इट कि मतलब रेलेवेंट भी नहीं, हर आंसर को ऐसे ही कर रहे हो, हब स्पोक कर रहे हो, तो एग्जामिनर को लगेगा कि इसके तो पूरे पेपर में सिर्फ डायग्राम है, कुछ कंटेंट ही नहीं लिखा है। सो डायग्राम्स होने चाहिए बट कंटेंट होना चाहिए मेजरली। सो ये आपको मीम पता ही होगा, डू रीड इट इफ यू कैन, एंड रेलेवेंट आपको लगता है क्या? तो 4 डायग्राम्स, आई डोंट मीन इट लिटरली, दैट मीन्स रेलेवेंट एंड लिमिटेड डायग्राम्स, डोंट मेक इट लुक लाइक डायग्राम्स के एक्स्ट्रा मार्क होते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो मिलने वाले हैं वो लेना है, बट बेसिक मार्क्स के ऊपर ही तो एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक एक नंबर लेके पेपर में 20 नंबर तो नहीं चाहिए, अपने को चाहिए 100 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स। ये 100 मार्क्स जो है वो आपको कंटेंट से मिलने वाला है, ये 20 मार्क्स डायग्राम से मिलने वाले हैं। तो आपको ये समझना है कि देयर शुड बी अ बैलेंस,
डायग्राम्स को यूज करना है एज अ स्पाइस, नॉट एज अ कोर थिंग, सो डोंट ओवर डू इट। एंड इफ इट इज नॉट रेलेवेंट, यू आर जस्ट मेकिंग इट फॉर द सेक ऑफ इट, डिस्कार्ड इट। बहुत सारे ऐसे पेपर्स आप देखोगे, GS2 के आप पेपर्स देखिए, उसमें इतने बहुत ज्यादा डायग्राम्स नहीं होते हैं, बट स्टिल पीपल स्कोर डिसेंट मार्क्स इन GS2। एंड देर आर ऑल्सो कॉपीज जिन्होंने बहुत ज्यादा डायग्राम्स नहीं बनाए, बट दे हैव गॉट गुड मार्क्स बिकॉज दे वर रेलेवेंट, they written what is asked, they have addressed the demand। so please make sure you इनफैक्ट इसको आप नोट कर लो कि बेवजह की डायग्राम्स नहीं ड्रॉ करने, वी शुड नॉट ओवर किल इट, ओवर डू इट, एंड वी एंश्योर दैट इट इज एनहांसिंग आवर आंसर इंस्टेड ऑफ making it look bad or making it look like just the diagrams in the paper। okay, so when to draw it exactly? जब भी आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ है, बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जैसे कि विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो है, वो आपको पैराग्राफ वाइज लिखते तो 2 पैराग्राफ जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया दैट देयर इज अ पॉवर्टी विच इज कॉजिंग लो एजुकेशन, लो एम्प्लॉयमेंट, एंड इट इज कॉजिंग पॉवर्टी अगेन, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फिर पैसे नहीं है, फिर पुअर हैं, फिर एजुकेशन नहीं मिल रही, सो इट इज अ विशियस साइकिल। इसको एक्सप्लेन करने में शायद ज्यादा मेहनत लगती, या जो ऐसे सोलर एनर्जी की हमारी ग्रोथ हो गई है, वो अगर आपको वर्ड्स में लिखना होगा, सो इट मे टेक मोर स्पेस, इट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, बट इफ यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, इट विल बी इन अ बेटर मैनर। इफ इट कॉम्प्लीमेंट्स योर आर्ग्यूमेंट, जैसे आप बता रहे हो कि डाइवर्जेंस कैसे होता है, हाउ द प्लेट बाउंड्री मूव्स, एंड देन फिर आप वहां पे ऐसे 2 प्लेट बाउंड्रीज बना के बता रहे हो कि दीज आर डाइवर्जिंग बाउंड्रीज, इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग योर आर्ग्यूमेंट। कोल एरियाज के बारे में आप कुछ कुछ मेंशन कर रहे हो, और इंडिया के मैप पे आपने बता दिया कि कोल एरियाज कहाँ पे हैं, राइट? दिस इज कॉम्प्लीमेंटिंग, and it adds an extra dimension. You have addressed the demand, you have addressed the every part. Now you want to add addition, little additional, for example way forward or the policy or a case study, as I showed you in a Xenia Aurora AIR 6 का जो था, उसमें मैंने आपको बताया था। तो वे फॉरवर्ड लिख लिया उन्होंने, इतनी सी जगह बची थी, एक नया एडिशनल डायमेंशन आ सकता है, but core everything is fulfilled, answered, and now you have a little space, now you want to add something extra, then you can use diagrams। okay, I hope this is clear to you। now let me just give you a quick demo because it will make you understand things better। this is GS1 2025 पेपर, आई हैव गॉट 14 क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं क्विकली बताऊंगी कि कहाँ पे हम डायग्राम्स बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, जहां नहीं बना सकते वहां बेवजह नहीं बनाना है। सी, डिस्कस द सेलियंट फीचर्स ऑफ हरप्पन आर्किटेक्चर। ऑफकोर्स हरप्पन आर्किटेक्चर में आपको बहुत सारे डायग्राम बनाने के स्कोप है, आर्ट कल्चर है, आपने पढ़ा होगा इसके अंदर, सो मेनी थिंग्स आर देयर, यहाँ पे डायग्राम इज पॉसिबल। एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, इसमें मोस्ट लाइकली आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा, अच्छा कंटेंट लिखना पड़ेगा कि रिलीजन में उन्होंने कैसे इबादत खाना बनाया है, कैसे बुक्स को ट्रांसलेट कराया, एंड ऑल द कोर कंटेंट, द फैक्ट्स एंड ऑल इज गोइंग टू मैटर मोर, राइट? सो यहाँ पे आप डायग्राम का स्कोप बहुत कम है। इफ यू हैव सम आइडिया कि आप कैसे बना सकते हो, देन यू में, बट यहाँ पे मोस्टली यू शुड राइट द कोर कंटेंट। same sculptures of Chandela, if you are good at drawing sculptures, if you can represent some temples जिसके ऊपर sculptures वगैरह हैं, then only you can draw, या maybe a very small map showing where Chandelas are, Khajuraho temples and all, that may add value, but that's not the core idea। core idea है कि आपको इनके sculptors के बारे में अच्छे arguments and content लिखना है। now these are geography question, यहाँ पे आपको maps must है। climate change में sea level rise, very existence of many island nation, तो आपको वर्ल्ड के आइलैंड नेशंस दिखा सकते हो आप वर्ल्ड मैप में। योर डायग्राम एंड स्पेसिफिकली वर्ल्ड मैप इज गोइंग टू बी वेरी रेलेवेंट, राइट? व्हाट आर द नॉन फार्म एक्टिविटीज, ये बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई खास डायग्राम की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप लिखिए, एक्सप्लेन करिए हाउ आर दिस एक्टिविटीज रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर। नाउ हियर द डायग्राम कैन बी एडेड दैट व्हाट फिजियोग्राफिक फीचर इज देयर इन इंडिया, तो इंडिया का मैप बनाइए, फिजियोग्राफिक फीचर बता सकते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी। अब ऐसे सोलर एनर्जी आया, यहाँ पे जनरली आपको बेनिफिट्स बताने हैं, इकोलॉजिकल का एक सब हेडिंग, इकोनॉमिक बेनिफिट का एक सब हेडिंग, एंड देन यू आर राइटिंग, मे बी यू कैन राइट सम डेटा और समथिंग लाइक दिस, राइट? ये डायग्राम का छोटा सा स्कोप है, इफ यू हैव रेड, यू नो सम डेटा एंड ऑल। व्हाट आर द सुनामीज, हाउ दे आर फॉर्म, हियर द कॉन्सेप्चुअल डायग्राम, सुनामी का फॉर्मेशन जो भी होता है, वेव्स कैसे होते हैं, क्या होता है, उसका आपको कॉन्सेप्चुअल डायग्राम्स जो कि आपने पढ़ा होगा अपने बेसिक ज्योग्राफी प्रिपरेशन में, दैट यू विल हैव टू ऐड। सो यू आर सीइंग यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे डायग्राम्स ऐड ही नहीं हो रहे, एंड इट इज ओके, डोंट ऐड इट फोर्सफुली।
हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेसेस द इशू ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। यहाँ पे आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत मैटर करते हैं कि आप स्मार्ट सिटी को अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से कैसे लिंक करते हैं। यहाँ पे आप कुछ अर्बन हीट आइलैंड का स्केच बनाओ, ये बनाओ, इट इज इररेलेवेंट हियर। नो, नॉट मच डायग्राम इज नीडेड हियर, कोर आर्ग्यूमेंट्स आर नीडेड। हाँ, मे भी कुछ हब स्पोक बना लिया, कुछ ऐसे वेन डायग्राम बना लिया, वो बना सकते हैं, बट अननेसेसरी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ethos of civil services in India stands for the combination of professionalism and nationalistic conscious. Arguments are more important than diagram. At max Venn diagram या कुछ ऐसा बना लिया कि how here like the प्रोफेशनलिज्म एंड नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस के बीच में आप क्या वैल्यूज या क्या देखते हो, इस तरह के छोटे मोटे कुछ रिप्रेजेंटेशंस बना सकते हो, बट मेन थिंग शुड बी आर्ग्यूमेंट्स टू सब्सटैंशिएट दिस आंसर। ओके, यू हैव टू सब्सटैंशिएट इट। डू यू थिंक ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर। इसमें आप क्या मतलब डायग्राम बनाओगे, सिंपली आपको आर्ग्यूमेंट्स अच्छे लिखने हैं सोसाइटी के क्वेश्चन में, और थोड़े बहुत वेन डायग्राम, ट्राइंगल्स या कुछ वैसे बनाए जा सकते हैं, बट नॉट अ लॉट ऑफ डायग्राम स्केचेस आर पॉसिबल। सेम इन दिस क्वेश्चन ज्योतिराव फुले के एफर्ट्स के बारे में आपको बताना है फॉर ऑल सबऑल्टर्न क्लासेस। इसमें आप प्रॉपरली अगर सब हेडिंग्स बना के उनके वर्क को एक्सप्लेन कर पाओगे, दैट विल बी एक्सीलेंट आंसर देन ड्रॉइंग अननेसेसरी डायग्राम्स। देन कंसोलिडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन, आईआर, ये चार खुद ही डायमेंशन आ गए। यहाँ पे क्या डायग्राम बनाओगे, मे बी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में छोटा सा एक इंडिया का मैप, जहाँ पे हाउ वी कंसोलिडेटेड द स्टेट्स, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो वो एफर्ट किया था कंसोलिडेशन ऑफ द स्टेट्स थे, वहां पे थोड़ा बहुत यूज हो सकता है, बट मोर प्लेसेस पे इट इज नॉट। नाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन में व्हाट डायग्राम विल यू, यहाँ पे कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ी बहुत चीजें आपको बतानी है, राइट। नाउ हियर हियर डायग्राम इज मस्ट, यहाँ पे तो आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड। हाउ, अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है, राइट। उसमें आपको ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट बताना है कि क्यों ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, बट यहाँ पे अगर आप वर्ल्ड मैप बना के बता सकते हो कि यहाँ यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन दैट विल गिव यू एन एज। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी कि आप कहाँ डायग्राम बना सकते हो, कहाँ नहीं। जहां आपके आर्ग्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, वहां पे आर्ग्यूमेंट्स को फोकस करना है। जहां पे डायग्राम कैन हेल्प यू build, give a better conceptual explanation, give you value and complement your answer, then you have to ensure that you make those diagrams. This is how you have to do, and that is why I have come up with a demo where I will walk you through कि कहाँ पे exactly diagram possible है, कहाँ पे नहीं। Okay, I hope this is helpful for you. Now what you should do, आपको अब जीएस वाइज, इवन इफ यू गिविंग 2026 अटेम्प्ट, आप GS1 GS2 के हर टॉपिक पे सोचिए कि क्या डायग्राम्स पॉसिबल है। हाउ यू कैन डू इट, यू कैन लुक एट द टॉपर्स कॉपी, यू कैन लुक एट योर नोट्स, एंड फिर एक कंपाइलेशन बना के आप रख सकते हो। जैसे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में इस तरह के नोट्स लगेंगे, दिस इज बाय रूपल जायसवाल मैम, she is going to take the session, so these kind of value addition can be done, these are the notes। geography में आप ऐसे maps and all बना सकते हो। so geography में I want to have a special mention, जिनके मैंने diagrams यहाँ पे पिक किए हैं। so he is असद जुबेरी सर, AIR 86, so let me just here mention you। तो आप इनके टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, AIR 86 हैं, असद जुबेरी। इफ यू search his name on telegram you will find it, and he has compiled wonderful diagrams for geography। See, I'll show you, I've got the PDF for you। ओके, सो सी ज्योग्राफी GS1 के लिए देखिए, उन्होंने ऑलमोस्ट सारे डायग्राम्स, बिग बैंग थियोरी हो गए, अर्थक्वेक हो गया, सो मेनी डायग्राम्स। आई जस्ट स्क्रॉल दिस डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखिए। सो सच अ ब्यूटिफुल डायग्राम सर हैज प्रिपेयर्ड। He has prepared the diagram for so many things। if you have anthropology optional, this is a gold mine for you। आप जाके असद जुबेरी सर का टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली चेक करिए, एंड लुक एट दिस हाउ वंडरफुल डायग्राम्स ही हैज प्रिपेयर्ड फॉर ज्योग्राफी। इस तरह के डायग्राम्स आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, मेक सेंस। सो असद जुबेरी सर, जो कि ऑल इंडिया रैंक 86 है, आई थिंक 2022 के, इनके टेलीग्राम चैनल पे जाके आपका ज्योग्राफी का काम तो हो जाएगा, राइट। सो इट वॉज अ स्पेशल थिंग दैट सर हैज डन। आप भी इसको कंपाइल करें। एंड देन इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा डायग्राम का स्कोप नहीं होता, बट हाँ कुछ ऐसे वेन डायग्राम्स, कुछ ट्राइबल्स के बारे में, जैसे अभी आपने वो देखा था ऑक्सफैम रिपोर्ट जो थी, कि इतने परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, लाइक दिस मच परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन कवर्स दिस मच प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, सोशल इनइक्वालिटी है, पोवर्टी है, इनजस्टिस है। तो इस तरह के डायग्राम्स, डेटा को डायग्राम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, दिस यू कैन डू।
नाउ GS2 में क्या टॉपिक्स हैं? पॉलिटी के लिए आप कुछ डायग्राम्स, बहुत नहीं है। पॉलिटी में जनरली वैल्यू एडिशन क्या होता है? आर्टिकल्स, जजमेंट कमिटीज, ये सब होते हैं, या केस स्टडीज होते हैं। सो इफ यू वांट, सी, मेकिंग डायग्राम्स इज वन kind of value addition, but there are more aspects to value addition, as I told, for polity. If you want me to come up with a comprehensive video where I will talk about all types of value addition, how to do it, how to practically, I can provide you those, then you let me know in comments. And if there are people who genuinely want to know how to do the value addition interlinkages, न्यूज़पेपर से कैसे वैल्यू एडिशन करें और कहाँ से कर सकते हैं, if you want that, do let me know in comments. I will consider making the video on value addition as well. ओके, सो पॉलिटी में थोड़े बहुत डायग्राम्स होते हैं, जैसे यहाँ पे है प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 142, तो उसको ऐसे बस एरो मार के एक्सप्लेन करते हैं। बहुत बेसिक सिंपल डायग्राम है, कोई बहुत फैंसी नहीं है। यहाँ पे भी इलेक्टोरल रोल ऑफ प्रेसिडेंट, तो इसमें कौन से लोग इंक्लूडेड हैं इलेक्टोरल रोल में, तो बहुत बड़ी बेसिक सी चीज है, बहुत स्पेशल डायग्राम्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोशल जस्टिस या गवर्नेंस में डिजिटल डिवाइड का डेटा है अपने पास, एक्सेस टू कंप्यूटर, इसको आपने ऐसे बना दिया, इंटरनेट का जो एक्सेस है, यूजेज है, इसका बना दिया। एंड नाउ यू आर सीइंग दैट अर्बन एरिया में ज्यादा है, रूरल एरिया में कम है, दिस इज अ डिजिटल डिवाइड। सेम यहाँ पे सेवोत्तम मॉडल होता है, उसके लिए आपने ऐसे तीन एस्पेक्ट्स उसके बना दिए कि सिटीजन चार्टर हो गया, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो गया, एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। सो दीज काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल डायग्राम्स फॉर गवर्नेंस। IR में यू कैन मेक वर्ल्ड मैप वेर एवर पॉसिबल एंड नीडेड, राइट? GS3 में diagrams are very handy. Economy में a lot of data is there. So if you can learn how to convert data in a better visual representation in a diagrammatic format, you will definitely gain half or 1 mark extra whenever you draw such diagrams. So ensure that you master this particular skill. So data to diagram, जो कि आप PIB और गवर्नमेंट एंड न्यूज़पेपर्स में भी, इफ यू कीप अ क्लोज आई ना, यू विल बी एबल टू पिक दिस थिंग, जैसे मैंने आपको PIB में दिखाया था। तो इकोनॉमी के जो डेटा एंड ऑल होते हैं उसको, एग्रीकल्चर में भी देयर कैन बी सम डायग्राम्स, जैसे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, तो वहां पे आप एक अच्छा कैसे डायग्राम बना सकते हो एंड ऑल दोज थिंग्स यू कैन मेक। एनवायरमेंट में ऑल्सो इंडिया के मतलब कहाँ पे डिजास्टर्स है, एनवायरमेंट है, विच रिसोर्सेज आर देयर, व्हाट काइंड ऑफ species are there, where is the Ramsar site and all that, those you can map on the environment as well. डिजास्टर मैनेजमेंट में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको डायग्राम बनाना। ये भी असद जुबेरी सर हैं, इनका आप डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल एक बार देखिए। यहाँ पे उन्होंने एक ही पेज में सारे डिजास्टर मैनेज के, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक का, फ्लड जोन मैपिंग का, इसके डायग्राम्स बना के रेडी रखे हैं। सो यू कैन क्रिएट सच 5-6 इंडिया के मैप्स जहाँ पे मेजर जो भी डिजास्टर्स होते हैं, दैट कैन बी प्रिपेयर्ड एंड दैट कैन हैव अ प्रॉपर मैपिंग, राइट? Now, same with internal security, where you can have the bordering countries. जैसे for example, the challenges with Bangladesh, with Pakistan, with Sri Lanka, you can learn a map of India with plus neighbors. तो जब भी आता है क्वेश्चंस, जनरली इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज जो होते हैं, बॉर्डर इश्यूज एंड ऑल होते हैं, उसके लिए आप ये सीख सकते हो। ऑल्सो यू कैन लर्न इंडियन ओशन का मैप एंड ऑल, बिकॉज मरीन सिक्योरिटी जो भी है उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। सो दीज काइंड ऑफ कंपाइलेशन यू शुड डू। नाउ फॉर GS4, जैसे एथिकल वैल्यूज होते हैं, एम्पथी, कंपैशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके फॉर एग्जाम्पल हियर, इफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेपरेटेड, इट इज एपैथी, व्हेन दे आर लाइक दे रिलेट टू ईच अदर, इट इज एम्पथी। इसके बहुत सुंदर सुंदर और भी डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे। देन देर आर सो मेनी को रिलेशन आर आस्क्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा है, मतलब को रिलेशन पूछा गया है किसमें, एजुकेशन में एंड आई एम नॉट एबल टू रीड इट, बट ठीक है। यहाँ पे जैसे वाइस मैन, बोथ आर पॉजिटिव एंड समथिंग लाइक दैट। सो हियर यू कैन कंपेयर टू थिंग्स, एजुकेशन एंड एथिक्स, आई थिंक इट इज रिटन है, एथिक्स है क्या? सो यू कैन जस्ट कंपेयर फ्रॉम एक्स एक्सिस एक बना दिया, एक वाई एक्सिस बना दिया। लेट मी जस्ट शो some more ethics के diagrams to explain this idea. For example, here it is x axis and y axis. तो एक जगह पे suppose there is ethics and skill, ethics है and skill है। सो अगर हाई वैल्यूज हैं, मतलब हाई एथिक्स है या हाई स्किल्स हैं, बट वैल्यूज हाई हैं, दोनों हाई हैं अगर, देन इट इज अ पॉजिटिव थिंग, बिकॉज हियर बोथ द पॉजिटिव क्वाड्रेंट इज देयर।
तो जैसे एग्जाम्पल डॉक्टर कलाम है, तो उनके वैल्यूज भी हाई थे, स्किल्स भी हाई थे, हाई वैल्यू है बट लो स्किल्स है। जैसे ऑनेस्ट मैनुअल वर्कर है, एथिक्स तो है बट स्किल नहीं है उतना, बट दिस कैन इम्प्रूव। लो वैल्यू लो स्किल्स है, डू नॉट मैटर मच, क्योंकि ये लोग ज्यादा कोई हार्म नहीं करेंगे, कुछ नहीं आता, बस ऐसे पढ़े हैं। हाई वैल्यू हाई स्किल है, ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे कि दुर्योधन, ओसामा। सो आई थिंक ओसामा वॉज एन इंजीनियर हु न्यू हाउ टू बिल्ड अ बॉम्ब एंड एवरीथिंग। दुर्योधन भी बहुत पावरफुल एंड स्ट्रेटेजिक पर्सन था, बट देवर इन अ साइड ऑफ लो वैल्यू, दे हैड अ पुअर मॉरल वैल्यूज। तो इस तरह से आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे कुछ भी बना के दो चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, चाहे अब वो EQ IQ हो, इंटीग्रिटी एंड नॉलेज हो, मतलब सिमिलर थिंग, एंड देन यू कैन राइट एग्जाम्पल्स देयर। ओके, सो आई थिंक सिमिलरली, सिमिलरली हियर दिस इज आई बिलीव कॉपी ऑफ मेधा आनंद मैम, उन्होंने भी ऐसे ही दो चीजों को कंपेयर किया गया है कि एजुकेशन है, एथिक्स है, दोनों भी प्लस प्लस है उसके बंदे के अंदर, तो आइडियल मैन होता है। ये है पर दूसरा नहीं है, वो डेविल होता है, उस तरह का अपना भी सेम एग्जाम्पल था। सो यू कैन हैव सच कंपेरेटिव थिंग्स रेडी, एंड हमेशा पूछा जाता है एम्पथी कंपैशन में डिफरेंस बता दो, लॉ एंड एथिक्स में डिफरेंस बता दो, या दोनों में से कौन सा जरूरी है, तो यू कैन राइट ड्रॉ सच स्मॉल डायग्राम, छोटी सी जगह में ये रेडी हो जाएगा। देन केस स्टडीज में स्टेक होल्डर्स वगैरह दिखाने के लिए, तो जैसे ये मेधा मैम की बुक है, तो स्टेक होल्डर्स इन्होंने ऐसे एक छोटा सा डायग्राम बनाया और सारे स्टेक होल्डर्स दिखा दिए। दिस इज अ कॉपी ऑफ शक्ति दुबे मैम, सो शी हैज ऑल्सो ऐसे ड्रॉ अ रेक्टेंगल एंड उसके ऊपर सारे स्टेक होल्डर्स दिखा दिया। इस तरह से आप कंपाइल कर सकते हो GS4 के डायग्राम्स बेस्ड ऑन द वैल्यूज एंड टॉपिक्स। Now let me show you some diagrams that I have compiled. These are the diagrams by me. So ऐसे जैसे यहाँ पे comparative है, I'll just quickly walk you through this ethical law, ethical guidance, conscience, law and ethics के ऊपर अगर question आ जाता है, then public ethics, private ethics, this corporate governance का people, profit, planet, such kind of things can be there. Components of empathy क्या है, then this kind of flow charts can be prepared, that voice of conscience. If you like listen, you hear the voice of conscience, you will have inner peace. If you don't, there is a guilt, remorse, etc. So these kind of flow charts, diagrams, all these things can be prepared. तो ऐसे आप 20-25 diagrams को compile कर सकते हैं. Okay, so this is the diagrams that I have compiled myself for ethics GS4. इसी तरह से आपको मैंने geography के सारे diagrams दिखा दिए by Asad Zuberi sir. So what you can do, how to compile it, I'll tell you how you can compile it. First of all, when you're studying, you must be making some diagrams. So from your notes, now just compile the list of diagrams. So make some pages जहाँ पे सिर्फ diagrams बनाओगे आप. This is applicable for 2026 and 2027 वालों को तो definitely करना ही है, क्योंकि आप अभी एडवांस में हो, यू आर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड, तो यू विल बी ऑलरेडी रेडी बाय डिसम्बर, दैट एंड नवंबर दिसंबर, एंड अभी से ये टास्क चालू करो कि आपके नोट्स एंड ऑल आप बना रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, उसमें जो भी डायग्राम्स है उनको एक जगह पे कंपाइल करते रहो, सब्जेक्ट वाइज एंड थीम वाइज। देन व्हेन यू आर रीडिंग द टॉपर्स कॉपी, okay, when you're reading the toppers copy, what you can do, for example, now I gave you that Oxfam report का example, toppers copy से उठा के diagrams को अपने themes में डालते रहो, तो खुद के भी notes होंगे। अब the ethics का all the diagrams are not purely mine, मैंने कहीं किसी notes में पढ़ लिए, किसी टॉपर की कॉपी में पढ़ लिया, खुद से कहीं notes में पढ़े, खुद से भी brainstorm किया, न्यूज़पेपर्स में देखा। so everything is everywhere, you have to become a person who keeps fighting and getting। तो टॉपर्स कॉपी से आप ले लो, फिर कुछ कोचिंग के नोट्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नोट्स, वहां से आप पिक करो एंड खुद से भी ब्रेनस्टॉर्म करो। गवर्नमेंट का PIB हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, so all this I will teach you how to pick the value addition thing from the newspaper. If you want, like genuinely want it, how to add value to your answers and all, put in comments, I will make the video on value addition as well, the way I made a comprehensive video for diagrams. So this is how you can compile the diagram in a very practical manner. And then what you can do, of course you can search for Asad Zuberi search channel, वहां पे जितने आपको diagrams and all मिल रहे हैं उनको directly भी use करिए, and there are other toppers, other compilations that you can find, but you have to put that effort that you're searching for such kind of compilations and diagrams. Okay, and I have tried to give you as many as I can. रूपल मैम का भी diagrams वगैरह she will be telling in the mains Excel program. Okay, so and what we are going to do in the GS course, that is our UPSC essential course of UPSC prep, our idea is make you ready with all these comprehensive diagrams and notes, and teach you the skill of building your own diagrams. तो अभी मैंने जो आपको एक glimpse दिया है, I will be teaching environment in this particular course, UPSC essential
2027 as well as 2028. So इस कोर्स के अंदर there are like phases. GS basic है, advanced है, prelims focus. So we go phase wise manner in a very comprehensive manner where even if you're a beginner, you're starting now, you will understand everything and you will become somebody pro who knows how to write answers, how to add the value, how to draw diagrams, everything we are going to cover. And we have a wonderful faculty. Neelam ma'am is there to teach you political science. She has experience of almost a decade of teaching political science. She has taught in Delhi University. Abhijit sir is there. He'll be teaching geography. Then Nimish sir जो हैं वो आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री. ही लव्स द सब्जेक्ट. केतन सर की हैंडबुक इकोनॉमी की आप लोगों ने पढ़ी होगी. ही इज गोइंग टू टीच यू इकोनॉमी. आई एम देयर टू टीच यू एनवायरमेंट. रोहन सर टीचेस यू ए मैक. सो everything is covered. In fact, if you're fearful of CSAT or prelims, don't worry. Prelims के लिए strategy sessions and all everything will be there. And हम लोग आपको ये डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, वैल्यू कैसे ऐड करना है, कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स कैसे लिखना है, थ्रू आउट द कोर्स in a phase wise manner we will teach you. So if you're looking for a course and you want to start your UPSC preparation, what you can do, you can go to courses.upscprep.com and you can search for this particular course. Okay, so now before ending the video I want to give you few pro tips. सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस द डायग्राम बिफोर हैंड. आई विल टेल यू व्हाई. क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी और आप बस ऐसे बैठ के वीडियो देख ले और आपको लग रहा है अब आप डायग्राम बना लोगे, सो ऐसे दो पन्ने मिलने वाले एग्जाम में. यहाँ पे भी ऐसे मार्जिन होती है, उसमें आपको लिखना नहीं होता. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते ना कि आपका कितना स्पेस लेगा. अगर आपने मैप बनाया इंडिया का और आपने ये इंडिया का मैप बनाने में इतना पूरा स्पेस भर दिया, ये पूरा पन्ना खत्म हो गया, देन आप गए काम से. सो इट इज नॉट यूजफुल. आपको मैप छोटा बनाना है, इतने में आपका फुल फिट हो जाए, सॉरी इतने में आपका फिट हो जाए, राइट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव अ बेटर स्पेस मैनेजमेंट स्किल. एंड जब तक आपने एडवांस में नहीं डायग्राम बना लिया है, आप एग्जाम में जाके उसको रेप्लीकेट नहीं कर पाओगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस बिफोर हैंड. यू हैव अ कंपाइलेशन. जब आप लिस्ट बनाओगे, जैसे अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि असद जुबेरी सर जो है इनके ज्योग्राफी के डायग्राम, जब तक आप ये डायग्राम अपने हाथों से नहीं बनाओगे ना, तब तक आप रियल एग्जाम में नहीं बना पाओगे. बिकॉज यू विल मे बी लर्न इट, यू विल सी इट कि अच्छा ऐसे ऐसे डायग्राम्स होते हैं, बट यू हैव टू मेक इट स्मॉल. इतने में ही आ जाना चाहिए वो डायग्राम. एंड यू हैव टू इंश्योर कि उसको कितना टाइम लग रहा है, एंड तभी पता चलेगा जब यू हैव प्रैक्टिस योर सेल्फ. आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट डोंट लुक एट 100 डायग्राम्स. प्रैक्टिस 20 diagrams. You will be able to execute those. Okay. Now compile theme wise diagram. This is what I have told you, that go theme wise. GS 1 2 3 4. I have already given you themes. I have given you some resources how to do it. First you get it from your notes, then you are reading Topper's copy, get the data, learn the skill of converting data into diagrams. This you can scroll few PIB pages and all, see how government is coming up with the diagrams, diagrammatic representation of data. Okay, these are the way using which you can compile it. Now this is something very interesting and important. Set a reminder to draw diagram. So whenever you will go in your mains examination, or whenever you're writing mock test, or you're going in the real examination, what you should do, suppose you're in the examination hall, you will get 1-2 minutes. First of all, calm down and just tell yourself, is there a scope? Is there a scope? Whenever you read a question, ask yourself, is there a scope to draw a diagram? Okay. जैसे मैंने आपको अभी GS1 का डेमो करके दिखाया ना, वैसे ही आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को देखते ही अपने आप से पूछना है, इज देयर अ स्कोप टू ड्रॉ अ डायग्राम? इफ द आंसर इज यस, यू हैव टू क्विकली फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ डायग्राम यू कैन ड्रॉ. So this is a reminder that you have to give yourself every time you're reading a question. And ये जो है ये प्रैक्टिस से आएगा. तो आप ये अभी से, इफ यूर अपियरिंग फॉर 2026 मेंस, अभी से प्रैक्टिस करो. क्वेश्चन पढ़ते ही अपने आप को पहले तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, डिमांड अंडरस्टैंड करना है, कितने सब पार्ट्स हैं, क्या सब हेडिंग्स है, वो अंडरस्टैंड करना है. एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट यू हैव टू आस्क, इज देयर अ स्कोप ऑफ ड्रॉइंग डायग्राम और नॉट. ओके, सो यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली कि डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, राइट. So thank you so much for watching this session. If you're here, I appreciate your time and I hope you learned a lot. If you want that I should make a video on how to learn value addition, then let me know in the comments. I will make that video for you. All the best in your UPSC journey.